ओके सो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे आईपीआर के एंड उसमें मेनली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि आईपीआर को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं. फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज़ कॉपीराइट. Okay, so industry property are those intellectual property rights that are generally related to inventions and product design, you can say. Okay, so they are generally, these IPR are generally related to research, development, business and industry. On the other hand, copyright are generally related to the work that comes under the domain of arts and literature. Okay. Now the copyright, that what we have discussed is that once you create something, uh, uh, like if you write a drama, you write a novel, or you write a poem, or if you write also a research paper, then generally you automatically gets the right on those contents. Okay, so those rights are called actually copyright. Hmm? And many time it is not required to register those copyrights. Whatever you have created, you do not need to register for getting copyright. You gets copyright automatically. Okay, but this is applicable for only the cases where the country have participated in a Verne there was a Verne convention actually that happened. So many of the countries around, I guess more than 170 countries are there, and they are that are the member of that convention. Okay, so in all those countries copyrights are automatically issued to them, and the copyrights is generally a kind of global kind of thing. Okay, so whatever you write or create, then you automatically gets copyright on that, and that copyright is acceptable in other countries as well, all in the member countries of Berne convention actually. Okay, but some in India, actually India, there is also a law that is related to copyright, and also it is not required uh, to uh, register yourself for getting a copyright on a content that you have created, but many time it may be better if you register your copyright. So to register the copyright, you can reach department DIPP, you might have heard Department of I'm not personal and product promotion something कुछ है, I'm not getting the full form, that comes under the Ministry of कॉमर्स मिनिस्ट्री में के अंडर में आता है. सो DIPP पर्सनल एंड प्रमोशन कुछ करके है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द फुल फॉर्म. DIPP शॉर्ट में याद है, इफ़ यू कैन गूगल इट, यू विल गेट द फुल फॉर्म. सो यू कैन रजिस्टर to DIPP, and so what is the benefit of registering? If once you register, then it will become very easy to prove that you have copyright on that thing. Okay, but suppose you do not register, then it may be difficult for you to prove that you have copyright on them or you have created that content. Okay, and it will become very easy to prosecute a person that violate copyright or your copyright. Okay, so many people registers the things they have created, but it is not necessary. Let me frankly tell you, it is not necessary. We have also discussed that there are some rights that are called related rights with respect to copyright. So the related rights are given to the persons that actually contributes in creation of certain things that are associated with some other copyright work. For example, suppose generally if you write a script for a movie, so you get automatically the copyright on that script, but ultimately your script need to be converted into a movie where many people will be involved to translate your script into a movie. Okay, like actors will be there, director, producer, all that. Maybe financer company will also be there. So these are also the people that should also get some benefit of creating a movie.
So all these peoples will get the related right. Hmm? uh, with in respect to your script, remember. Okay, I am talking about the script. अगर फिल्म बनाई है तो फिल्म में अलग से कॉपीराइट अब मिलेगा. Similarly, if you write a song or just you create a music, धुन आपने क्रिएट की and then उसके ऊपर somebody have written a poem and so poem के ऊपर copyright poet का है, that means lyricist का है and जो म्यूजिक में जो धुन है जो कंपोज किया है दैट विल बी गिवन दैट कॉपीराइट विल बी विथ द कंपोजर. बट वंस फाइनल सॉन्ग विल बी क्रिएटेड तो सिंगर शुड ऑल्सो गेट सम कॉपीराइट, है ना. सो सिंगर विल गेट द राइट एंड सपोज दैट इफ यू डू ए लाइव परफॉर्मेंस ऑन दैट while taking a license for a particular song. So suppose there is some popular song and that is sung by a famous singer. Maybe you can take a name of any of the singer like Lata Mangeshkar. It is sung by Lata Mangeshkar and Kishore Kumar. And suppose that you just recreate that song, or that means you just perform on a let's say on a public platform. You just also song and records that, but you have taken proper license and permission to sing that song on public platform. Okay, then on that performance you will get also your copyright. Okay, that right is called related right. So many time while you create content or you do live performance and do broadcasting of such kind of things, so many peoples that are related in that performance or broadcasting, they will also get the associated right. Generally those rights are called related rights. Okay, now let's come to the industrial rights, industrial IPRs, or the things that comes under industrial IPR. So there are a lot of IPRs that are related to industry. One of the most important is patent. So let's see what is a patent. So patent is actually an exclusive right that is given on a innovative development that you have done. So suppose that there is a problem is there in society and or say some technical company or there is a technical problem that need to be solved, and suppose you come up with a solution for that technical problem in form of a process. Okay, then the solution that you have developed can be patented. Okay, so patent is actually a kind of right that you will get on the technical solution that you have created for a particular problem. So a lot of problems are there, they require solution, and if you come up with a solution in form of process or in form of a product or in form of a formula, then you may get patent on that. Okay, so patent is actually a right that allows you to protect your technical contribution you have made or the solution that you have made. Okay, so if you define patent in brief, the patent it is a exclusive right that is given on some invention. Okay, so what can be an invention? Invention can be a product, it can be a process that provides a solution of some technical problem. Okay, so but it is also important that once you do an invention, then in order to get patent on that invention, it is important to understand that a patent will be granted only when your solution is innovative. Your solution is not very general. General means a common kind of solution. If you come up with a very common kind of solution, then that will not be granted as a patent, because there are a lot of problems. If you come up with a naive solution of that problem, then that solution will not be considered for patent. So naive solution से मतलब ये है कि वो बहुत आसान solution हो जो सबको किसी के भी दिमाग में हो, that will not be considered as considered for patent. नॉर्मल सॉल्यूशन जो किसी के माइंड में आ जाए, दैट जस्ट अब उसको
एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि यू कैन हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन दिस कैटेगरी इफ़ यू हैव ए सर्टेन प्रॉब्लम. So for example, mm, for example, suppose that you have a problem that you want to assess the performance of a student in a class. You are facing a problem to assess the performance of students or in a class. Okay, then it may be the case that you just come up with a solution that's just take class test of all the students, and you can take multiple class tests. This kind of solution is a general solution, and everybody knows this kind of solution. And however, this problem is not new. Suppose if there is a new kind of problem and you come up with a simple solution, then it will not work. जो नेव सॉल्यूशन जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आ जाएगा फर्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम को अगर फेस करते हैं तो, है ना. सो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन आर नॉट एक्सेप्टेबल. यू हैव टू बी वाइल डेवलपिंग सॉल्यूशन, यू हैव टू बी इनोवेटिव. आपको बहुत डिफरेंटली काम करना होगा, और द सॉल्यूशन शुड बी ए काइंड ऑफ थिंग जिसमें that automatically have an impression that it requires hard work and lot of patience to find out that solution. That is kind of thing. Okay, I'm just trying to perceive you कि किस केस में पेटेंट इशू हो सकता है. तो पेटेंट के केस में यही बहुत समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल सॉल्यूशंस के लिए पेटेंट नहीं होते हैं. आपने एक बहुत सिंपल टास्क किया हुआ है, उसको सॉल्व कर दिया और आप कहे कि नहीं वो पेटेंट हो जाएगा, है ना. जैसे नॉट गेटिंग, मेरे दिमाग में कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं आ रहा है जो आपको ज़्यादा रिलेवेंट लगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोविड जो है ना बहुत तेज़ी से फैल रहा है. एंड सपोज दैट इनिशियली एज्यूम कर लीजिए कि कोविड के टाइम पे जो आपने देखा होगा इंडिया में इनिशियल जो कोविड के केसेस आए थे, तो डॉक्टर्स ने क्या किया, एग्जिस्टिंग जो ड्रग्स थे उन्हीं को ट्राई करके ट्रीट करना शुरू किया, लाइक पैरासीटामोल, अजिथ्रोमाइसिन, ऑल दैट दीज ड्रग्स. सो लेट्स से देन दे सेड दैट इन to treat COVID patient, these drugs can be used. Okay, so this is not a very innovative solution. It cannot be patented. Okay, ये जो अप्रोच आप लेके आए सॉल्यूशन अप्रोच, इट जनरल अप्रोच कि आपको मालूम है कि जो कोविड का जो इन्फेक्शन है वो जनरली थ्रोट्स और लंग्स को अफेक्ट करता है, तो आपने अजिथ्रोमाइसिन दैट इज अ कॉमन एंटीबायोटिक दैट नीड टू बी गिवन, देन पैरासीटामोल दे दिया, विटामिन सी दे दी. सो दीज आर द कॉमन सॉल्यूशंस. दिस इज नॉट ए इनोवेटिव सॉल्यूशन, सो इट कैन नॉट बी पेटेंटेड. But suppose if you come up with a very new kind of drug or a very efficient drug जो कि actually वर्क कर रहा है, ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर रहा है, और you come up with a vaccine that is very newly developed for COVID. So जो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है that can be patented. आपने एक नई चीज़ लेके आए हो आप, you have a प्रॉपर सॉल्यूशन. ऐसा नहीं कि एक बहुत कॉमन सा सॉल्यूशन था जो अवेलेबल चीज़ें थी उसी में से आपने एक रास्ता निकाल दिया. दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड. आप उस टेक्नोलॉजी को पेटेंटेड नहीं करा सकते. ओके, नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट पेटेंट जो है, if you are going for patent, then if you have any developed a solution for any kind of technical solution or any kind of problem that is dominating in front of society, so a challenging problem is there, the society is facing that problem, so आप उसका solution लेके आ जाएंगे, then it can be patented depending on it if it has a novel kind of solution. Okay, but you will grant patent only when you will register your invention. ओके, सो अगेन DIPP जैसे इंडिया में है जो डिपार्टमेंट है, DIPP अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है. ओके, सो वहाँ पे उसमें रजिस्टर आपको कराना पड़ेगा. दैट मीन्स यू हैव टू फाइल ए पेटेंट. वंस योर पेटेंट इज ग्रांटेड यू विल गेट द पेटेंट देयर ऑन देयर. ओके, देन कुछ आपको राइट्स मिलेंगे, यू विल गेट सम राइट्स वंस योर पेटेंट इज ग्रांटेड. Okay, so the conditions that we are talking about are listed here. There are 4 conditions generally. Guidelines, these are the guideline conditions that must be satisfied by a solution to be patented. First is novelty, that I already talked about. Then inventive step. So inventive steps means it cannot be deduced by anyone. Average knowledge के person उसको solve ना कर पाए. That means it requires some kind of technical and innovative skill or innovative mind.
देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होना चाहिए, वट एवर यू हैव डेवलप्ड, दैट मीन्स जो टेक्निकल सॉल्यूशन आप लेके आए हैं दैट शुड हैव सम एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री और इन बिजनेस। एंड देन लास्ट कंडीशन जो कि आपको पेटेंट के टाइम में करना होगा, पेटेंट फाइल करने के लिए, यू हैव टू डिस्क्लोज योर इन्वेंशन। सो डिस्क्लोज करने का मतलब ये है, यू हैव टू फाइल ए पेटेंट एंड you have to describe the complete process, and also you need to provide the implementation details. So each and every detail you have to provide in detail to the patent office where you are going to file your patent. And when you applied for patent, they will review your invention against these all 3 or 4 criteria, and once your solution satisfy all these criteria, you may be granted a patent. Okay, and then once you get a patent, then you get some certain rights on your invention. What are those rights? If the inventor of the patent, suppose you are the inventor of the inventor for that patent, then you will get the rights on your patent for 20 years. Okay, so patent is always granted for 20 years, and once you get a patent, then who will use your process, you will control that. Okay, that means nobody can make any product or any kind of service on the solution that you have provided. Okay, if you give license or permission to somebody, then they can use your patent to make product or services based on that. Okay, and then you can also sell your patent as well. So generally हम patent को ज़्यादातर लोग license देते हैं, तो once somebody came to you license that according to your terms conditions. So for example, आपने कोई एक अच्छी method खोजा है, let's say water clean करने के लिए। सी वाटर नाउडेज एक बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है लोग पूरी दुनिया के सामने, कि जो हाउ टू फिल्टर और हाउ टू मेक वाटर, सी वाटर ड्रिंकेबल, जो समुद्र का पानी है उसे ड्रिंकेबल कैसे बनाया जाए, या एटलीस्ट एग्रीकल्चर के लायक बनाया जा सके। तो दैट इज़ ए चैलेंजिंग प्रॉब्लम, एंड सपोज यू कम अप विद सॉल्यूशन। आपने कोई एक केमिकल प्रोसेस खोजी जिसके थ्रू ईजिली या बेटर तरीके से, नए तरीके से, आसानी से, लेट्स से चीपर कॉस्ट में you can convert the salt water that is sea water actually into a normal water, और आप उसे स्वीट वाटर बोल सकते हैं, मीठा पानी बोल सकते हैं। So now you got that patent, let's say you got patent on that chemical process that you have developed. Now once you get a patent, you will decide who and how can use this technology for so suppose there is a company that want to commercialize your technology, then you can give license to that company. So जो जिस कंपनी को आपको देने की इच्छा होगी, वट एवर टर्म्स कंडीशन और फाइनेंशियल जो इंसेंटिव आप चाहते हैं, वो आप उनसे बात करेंगे, जो वट एवर इफ़ यू लाइक, or if you are satisfied with an offer that is made by some company, then you can give license to that. Okay, and then they can make product or they can develop a service on that patent. Okay, so this is how patent works. So normally आपने देखा होगा पेटेंट्स मेडिसिन के फील्ड में बहुत सारी कंपनियां जो है पेटेंट्स दूसरों से लाइसेंस लेकर के प्रोडक्ट बनाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर अभी देखा होगा कि जो सीरम की जो वैक्सीन है, दैट इज़ डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और एक और कंपनी का नाम क्या है, एस्ट्राजेनिका एंड सीरम के पास उसका पेटेंट है। दे हैव डेवलप्ड एक्चुअली दैट टेक्नोलॉजी, सो दे हैव रिसीव्ड दैट पेटेंट, एंड सीरम हैव टेकन द लाइसेंस फॉर दैट। तो हालांकि इसमें थोड़ा सा वर्क जो तरीका था पेटेंट ग्रांट करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि सीरम ने फंड किया था एक्चुअली उसमें। तो एस्ट्राजेनिका और सीरम ने फंड किया था, जिसमें ज़्यादातर जो रिसोर्सेज थे एस्ट्राजेनिका के इन्वॉल्व थे, सीरम ने कुछ एडवांस बुकिंग और ये सब किया था, तो दे गेट द लाइसेंस इजीली। और कंपनी भी ले सकती थी। सो जनरली यूनिवर्सिटीज और इंडिविजुअल रिसर्चर ऑल्सो कैन
develop can generally creates patent and then they can give license to other companies as well. कई बार companies के पास भी patents होते हैं. They also do research. So R&D में जो agencies हैं they do inventions and then whatever invention they have done they can patent that. Okay, so this is how the patent work. And once you patent anything, if somebody misuses or uses your technology without your consent or without any taking any kind of license from you, you can go to the court against them. अगर आपके पेटेंट लॉ का वायलेशन कर रहे हैं तो देन दे विल बी पनिश्ड बाय द कोर्ट्स एंड corresponding government agencies that are involved in the enforcing patent laws. So India also have their own patent law. 1970 में जो patent law आया था, that is there, and it have been modified I think in 2003 and 17. So India also have a patent law. If you are interested in understanding the details, what are the details are there for Indian patent law, you can go through the corresponding gazette that is available. Now one more thing, the patent is a territorial right. So territorial rights matlab it have a jurisdiction. So for example, if you file a patent in India, you will get the patent in India itself. Your patent will be applicable to India region also. Only the region in India, है ना, इंडियन एक्चुअली जहाँ इंडिया का जो ज्योग्राफी है उसी रीजन में वो कवर होगा. एंड इफ़ यू गेट ए पेटेंट इन लेट्स से यूएस, देन योर पेटेंट विल बी एप्लीकेबल इन यूनाइटेड स्टेट्स ओनली. ओके, एंड सो दैट मीन्स इट इज़ द इम्पोर्टेंट दैट वेयर आर यू फाइलिंग योर पेटेंट. सो आप जिस जगह पेटेंट फाइल करेंगे उसी जगह उस कंट्री के ज्यूरिडिक्शन में ही आपको पेटेंट मिलेगा. नाउ जो पेटेंट है, आपको पेटेंट जब मिल जाता है देन आपके मिसयूज की जो होने की जो चांसेस हैं, और इफ़ समबडी इज मिसयूजिंग, सो हु इज़ मिसयूजिंग योर पेटेंट, यू हैव टू ट्रैक दैट. और अगर आपको कोई पर्सन ऐसा, इफ़ यू आइडेंटिफाई ए पर्सन दैट इज़ मिसयूजिंग योर पेटेंट, देन यू कैन रिक्वेस्ट कोर्ट्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम. ओके, हाँ, हालांकि ये नहीं है कि देयर इज़ नो एजेंसी जो देखेगी कि आपका पेटेंट मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है. दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ़ यू आर ए पेटेंट ओनर, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पेटेंट को आपको देखना है कि समबडी इज़ नॉट यूजिंग योर पेटेंट और मिसयूजिंग योर पेटेंट. मतलब आप बिना आपके कंसेंट के या बिना आपसे लाइसेंस लिए कोई, इफ़ समबडी इज़ यूजिंग योर पेटेंट, देन आपको पता करना है कि कौन कर रहा है ऐसा, एंड देन यू कैन गो टू द कोर्ट. लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एजेंसीज में आपने पेटेंट रजिस्ट्रेशन करा लिए तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखेंगे आपका पेटेंट का मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू पेटेंट? No sir, it has stopped the commercialization of your inventions. Okay, one more thing, patent are granted for 20 years only. Okay, and उसके बाद रिन्यू नहीं होता है. सो पेटेंट एक बार आपका एक्सपायर हो गया, यू कैन नॉट रिन्यू इट. और देयर इज अ लॉ, ऑलमोस्ट सारी कंट्री सेम लॉ फॉलो करती हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड के कई सारी एजेंसीज हैं, जैसे वीपो है या यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पार्टनर्स हैं. देर आर ऑल्सो ट्रीटीज रिलेटेड टू ट्रेड. सो उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज आर बाउंड टू अप्लाई सम सेट ऑफ कॉमन रूल्स. सो पेटेंट का सारी कंट्रीज में 20 ईयर्स के लिए होता है. हावर पेटेंट्स के केस में कई बार ये इशू आता है, जैसे आपने यू माइट हैव हर्ड कि हमारे यहाँ जो हल्दी है, टर्मरिक, उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, है ना, मेडिसिन प्रॉपर्टीज हैं, एंड वी यूज फ्रॉम ईयर्स दोज थिंग्स फ्रॉम ईयर्स. So you know that the patent are territorial rights. So one company, I don't remember the name, they just filed a patent on this turmeric and got patent on that in United States, है ना. सो फिर बाद में इंडिया को उसको फाइट करना पड़ा था इंटरनेशनल कोर्ट में कि दिस इज़ यू कैन नॉट पेटेंट इट, क्योंकि कई बार क्या होता है, देर आर लॉट ऑफ मेल प्रैक्टिसेस कैन बी डन in different countries, because patents are territorial right. So generally अगर आपकी कोई एक होम टेक्नोलॉजी है या ट्रेडिशनल नॉलेज है, आपको उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा.
बट मैनी टाइम्स मैनी कंट्रीज आर रिलेक्टेंट इन दिस रिगार्ड। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ भी कई सारी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे खास करके ट्रेडिशनली अगर आप एग्जाम्पल है टर्मरिक का, जो ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ था मैटर। सो यूएस गवर्नमेंट, यूएस में पेटेंट, सम कंपनी हैव गॉट पेटेंट ऑन दैट, देन इंडिया गवर्नमेंट को फाइट करना पड़ा कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में, एंड देन वो दैट दे गॉट रिजेक्टेड दैट पेटेंट बिकॉज इंडिया में ट्रेडिशनली बहुत कई सालों से मेडिसिनल प्रॉपर्टी के तौर पर मेडिसिनल यूज इसका हो रहा है। सो दैट मीन्स देयर इज़ नथिंग न्यू, एंड न्यू नहीं है, स्टिल दैट इज़ ए नॉलेज। So that is a knowledge that belongs to us. So nobody has a right to protect to get patent on that thing on you in US. So that's why Indian government fought this case against this patent. Similarly कई कंपनियों ने ये भी किया है कि जैसे बासमती राइस हालांकि पेटेंट पे नहीं आता है, दैट इज GI टैग, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, दैट डजंट कम इन द पेटेंट, सो GI टैग में आता है। सर अगर मान लीजिए कोई पेटेंट अभी करते हैं तो वो अभी एक्सेप्ट होने में 3-4 साल 5 साल 8 साल भी लग जाते हैं। नहीं, जरूर नहीं है। तो सर ये जो 20 साल वाले आप बता रहे हैं तो वो जिस डेट से आपने एप्लीकेशन फाइल किया है उस डेट से ही काउंट होता है। इफ़ यू गॉट द पेटेंट ग्रांटेड, तो जिस डेट को एप्लीकेशन फाइल किया था वहाँ से मान्य होता है पेटेंट। तो क्या 20 साल के बाद फिर वो क्या एक्सपायर हो जाएगा? हाँ, पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा 20 साल बाद, एंड देन फिर उस टेक्नोलॉजी को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। देन वो पेटेंटेड नहीं रहेगी, नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगी। Okay, now the patent was one of the important industrial property. Then there are some more industrial properties that one of the common or very widely used and everybody knows about it is trademark. You might have heard of trademark, or you usually see lot of trademark daily. Let me show you one diagram. Yes. Okay, so you can see that this apple, it identifies a company or product which it belongs to Apple. This is Google. So you might see that these are the common symbols or marks that are used by popular brands or companies. Cisco, SAP, IBM. These are some of them. कुछ हैं इनमें से। I don't know why this is written channel. Okay, कंपनी का नाम होगा, हो सकता है। This is actually Facebook. Okay, so trademark actually is a kind of mark that represents a product or a service. So it is so trademark represents a product or service. And what is trademark? Trademark is a recognizable sign or design or expression that differentiate one product from other product of similar kind. For example, suppose that if you see this symbol on a shoes, what you will tell about that shoes? That is a shoes of Nike, है ना? And what is the difference between a shoes that is having this symbol and a shoes that doesn't have any symbol? सर सिंबल नहीं तो लोकल शूज हो सकती है। लोकल सो क्या होगा लोकल होने से? नहीं, ये सिंबल नाइक का है। हाँ, तो ये सिंबल क्या अश्योरेंस दे रहा है आपको? ये तो कंपनी है, नाइकी कंपनी का है, यू नो दैट। व्हाट इज इंडिकेटिंग, व्हाट दिस सिंबल इंडिकेट्स? एक शूज पर अगर ये सिंबल है तो ये क्या इंडिकेट करता है? अलाव इन एक्सेप्ट कि ये नाइकी को बिलोंग करता है, इसके अलावा और भी कुछ इंडिकेट करता है? नहीं सर, ये बताता है कि ये नाइक का ही है। नहीं, वो तो बताता है, लेकिन और भी चीज साथ में वो कैरी करता है। नाइक दिखाता है कि इट्स ए ब्रांड एक्चुअली, और इट्स हैव ए ब्रांड वैल्यू। दिस शूज इज हैविंग ए ब्रांड वैल्यू। कई बार कहते हैं ना सेल में आपको, अरे नाइकी का शूज मिल रहा है, जल्दी से तुरंत खरीद लेते हैं, सस्ते में 50% में आपको मिल रहा है, मतलब 80% ऑफर में अगर शूज मिल रहा होगा, पटाख से खरीद लोगे। क्यों? और वही 80% ऑफर में आपको एक लोकल ब्रांड का शूज मिल रहा हो तो आप नहीं खरीदोगे उसको।
और नाइकी का खरीद लोगे। या सपोज कर रही है नाइकी का शूज आपको 80% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है 1000 रुपये में, मान ली अज्यूम करिए 1000 रुपीज़ में आप जो ना नाइकी का शूज़ मिल रहा है, 1000 रुपीज़ में ही आपको लखानी कंपनी का शूज़ मिल रहा है, किसको बाय करोगे आप? सर वो नाइकी का, क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी और या उसका एक ब्रांड दिखा सकते मैं इसी की बात करने जा रहा हूँ कि व्हेन यू फाइंड ए सिंबल ऑन ए प्रोडक्ट और सिंबल और सर्टेन मार्क दैट इंडिकेट्स द क्वालिटी एंड द ट्रस्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर। आप जनरली कोई प्रोडक्ट है उसे कैसे पहचानते हो कि ये नाइकी का, या कार है उसे कैसे पहचानते हो कि सुजुकी की ही कार है? अगर मैं कोई भी एक कार लूँ और उस पर सुजुकी का लोगो लगा दूँ तब भी आप मान लोगे कि वो सुजुकी की है, जस्ट नो? हैं। सर क्वालिटी भी होगी। नहीं तो सुजुकी के क्वालिटी तो बाद में आप देखोगे ना। समटाइम्स यू कैन नॉट अश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय जस्ट सीइंग द प्रोडक्ट, बट वेन एवर देर इज ए मार्क ऑन ए प्रोडक्ट then you automatically get a assurance, और एक तरीके से indirect assurance you are getting that this product is having quality. Certain standards हैं इसके, they have quality level, comfort level, it will have a specific performance level, है ना? So automatically you get a assurance of the quality, है ना? merely अगर कोई कभी तो उसमें कोट में शू भी कर सकते हैं कि हाँ मतलब मेरे लोगों का यूज़। नहीं वो ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप उसे ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए एक शूज है, मैं उस पर केवल ये मार्क लगा दूं तो उससे वो क्वालिटी आ जाएगी? नहीं आएगी, है ना? या आप देखिए जनरली लोग जो ना माइक कई बार कई जो काउंटर फीट करने वाले लोग होते हैं वो ब्रांड का सिंबल क्यों लगाते हैं? क्वालिटी तो नहीं आ जाती है, बट दे वांट टू जस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ द ट्रस्ट दैट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैव क्रिएटेड इन कस्टमर्स माइंड। कस्टमर के माइंड में एक ट्रस्ट क्रिएट हो चुका है कि हाँ ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है तो अच्छा होगा, है ना? यस सर। ये इसका है तो अच्छा होगा। वुडलैंड के शोरूम में जाते हो तो आप बहुत सारे शूज देखते हो, आप क्वालिटी तो चेक करके नहीं आते हो, आप तो सिर्फ क्या करो, शूज देखा, पसंद आया, पहन के देखा और लेके आ गए, ऑब्वियसली सर। है ना? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि एक वुडलैंड एक आपको स्टैंडर्ड देता है, दे हैव ए प्री डिफाइंड क्वालिटी, इनबिल्ट क्वालिटी उस प्रोडक्ट में अपने आप है ना? तो आप किसी को लेकर के ये पूछने नहीं जाते हो कि भाई तुम इसका क्वालिटी चेक करके बता दो मुझे एक थर्ड पार्टी के पास। ऑटोमेटिकली आप देखते हो वुडलैंड का है, ले चलो, बस आपको फिटिंग और ये सब देख लेते हो एक बार और फिर पहन के चल देते हो तुरंत, और महंगा खरीदते हो उसको, महंगे में भी खरीद लेते हो। So what is because this is because the quality and the kind of reputation that product have earned in the mind of the customer. Customers को customer के लिए customer have the customer have faith on certain set of products, है ना? और and those product are recognized by the symbol. So each company जो वो कई सालों से, जैसे नाइकी है उसने कई साल लगाए हैं एक फेथ अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाने में। सो जनरली इसको फेथ को हम जनरली ब्रांड वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिफरेंट देयर कंपनीज आर हैविंग डिफरेंट ब्रांड वैल्यूज। टेलीविजन के फील्ड में अगर आप देखें तो सोनी, एलजी एंड सैमसंग, है ना? सो ब्रांड वैल्यू इंडिकेट्स ऑल्सो द क्वालिटी। ओके, सो ये जो ब्रांड वैल्यू है इसको आप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एंड दिस इज कॉल्ड a trademark. So trademark is actually a symbol that is used to represent a product that is made by a certain company. So well, a company that makes a product puts a specific symbol on that, and that symbol indicates that this product is made by a certain company. Like Nike, अगर एक शूज है उस पर नाइकी का सिंबल है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वी विल थॉट और वी विल थिंक दैट दिस प्रोडक्ट इज मेड बाय नाइकी एंड इट विल हैव इस सेट ऑफ क्वालिटीज़ जो हमारे दिमाग में पहले से हैं कि ये क्वालिटीज उसमें होंगे। नाउ ये हो सकता है कि उस ब्रांड वैल्यू, सो ब्रांड वैल्यू को कोई मिसयूज़ कर सकता है। ओके, सो दैट्स वाई कोई ब्रांड वैल्यू को मिसयूज़ ना करे, सो यू नीड टू गेट ए ट्रेडमार्क ऑन दैट। ओके, सो जो सिंबल हैं दीज आर एक्चुअली ट्रेडमार्क दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी। सो नाउ आप किसी भी प्रोडक्ट पर ये वाला सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओनली द कंपनी एप्पल हैव राइट टू यूज दिस सिंबल ऑन देयर, पुटिंग दिस सिंबल ऑन देयर प्रोडक्ट। ओके,
this symbol is registered by the Nike as a trademark. So only Nike uses this symbol. No other company can use this symbol. है ना? This is Toyota. So this is again the symbol that belongs to Toyota vehicle. So no other company except Toyota can use this symbol to display that on vehicle. है ना? Okay. नाउ अगर ये सिंबल्स को सपोज आप रजिस्टर नहीं कराएंगे ट्रेडमार्क के तौर पर, तो क्या हो सकता है, लोग जानते हैं कि अरे टोयोटा का तो बहुत नाम है, मैं भी कल से कार बनाना शुरू कर दूंगा और उस पर टोयोटा का लोगो चिपका के बेचना शुरू कर दूंगा, और आई कैन फूल पीपल इजीली, है ना. जो टोयोटा की क्वालिटी तो ओबियसली मैं नहीं दे पाऊंगा. और सपोज आई स्टार्टेड अ कंपनी, मेरी 1 साल पुरानी कंपनी, और मैं टोयोटा के लोगो लगाना शुरू कर देता हूँ. या इमेजिन करिए सुजुकी या टाटा का जो लोगो है, कोई एक छोटी कंपनी मार्केट से मैं उठती है एकदम से, और फिर वो अपने उन पर सिंबल लगाना शुरू कर देती है. सो दैट मीन्स दे विल ट्राई टू गेट गेट द बेनिफिट ऑफ द फेथ दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय टोयोटा आफ्टर ए हार्डवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स. कई सालों के हार्डवर्क के बाद टोयोटा ने एक फेथ गेन की है. कोई वो सिंबल पुट करके वो फेथ गेन आज आसानी से कर सकता है ना. और कंपनी जनरली अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करती हैं. दो सिंबल्स आर कॉल्ड ट्रेडमार्क, एंड दोज ट्रेडमार्क एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द रेपुटेशन एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड their symbols are also related to reputation of the company, and company have created that faith in the customer's mind, so that faith can be represented by that product mark. Okay, so it is important that company also would like to register this trademark so that nobody will be able to use that symbol on their product. क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, कोई दूसरा भी यूज करने लग गया, आपने उसे नहीं रोका, तो वो आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब कर देगा, है ना. नकली प्रोडक्ट आपने देखा है ना, कई बार ऐसे ही तो आते हैं और फिर कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है. पता चला आप आजकल यू माइट हैव सीन दैट ऑनलाइन अब कई सारे आप प्रोडक्ट खरीदते हैं कई जगह बार, या कहीं से भी खरीदते हैं, सो मैनी टाइम यू गेट ए डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो दिखने में एकदम कंपनी के प्रोडक्ट जैसा है, बट वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, और आप कहते हैं कि अरे ये तो कंपनी ख़राब सामान बनाने लग गई. पता हो सकता है आपने वो काउंटरफीट प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था. इट मे बी द केस. समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स दैट कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाती है. दैट इज सेपरेट थिंग. वो जनरली बहुत कम होता है. कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं गिराना चाहती, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू उनकी गिर जाएगी. ओके, सो वेराइटी ऑफ सिम्बल्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट कंपनी. सो आप देखेंगे कुछ जगह पे सिम्बल्स हैं, डिजाइंस हैं, कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन है, कुछ खास तरीके से शब्दों को लिखा गया है. So these symbols are used by trademark or service mark by different companies. Okay, and a particular symbol actually represents the brand value of the company, and goodwill and trust in the mind of customers the company have created after a hard work of large number of years. Okay, so that's why since trademark is very important, and in order to misuse or produce counterfeit product, trademark need to be registered, and then once you get a registration on a particular trademark, nobody will be able to use your trademark. Okay, and if somebody uses your trademark, you can take them to the court, and court will prosecute them. That, and they can be punished as per the laws related to trademark. So every country have laws related to trademark. So India also have laws related to trademark, and उसमें कई धाराएं हैं जिसमें आप काउंटरफीट अगर करते हैं, अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट को का ट्रेडमार्क यूज करके उसे सेल करते हैं, एंड इफ़ यू आर कॉट, देन यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द लॉज, द ट्रेडमार्क लॉ. ओके, सो ट्रेडमार्क कई तरीके के होते हैं. सो जनरली ट्रेडमार्क में दो तरीके की चीज़ें थी. आइदर यू विल यूज ए मार्क ऑन योर प्रोडक्ट और सर्विस. सो प्रोडक्ट पर आप यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ट्रेडमार्क. समटाइम्स सर्विसेज पर जब यूज़ करते हैं तो हम उसे सर्विस मार्क बोलते हैं. ओके, सो ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क कई तरीके के हो सकते हैं. समटाइम्स वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड समटाइम्स देर आर ऑल्सो सर्टेन मार्क्स दैट कैन बी यूज टू डिनोट द स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. लाइक आपने देखा होगा ISI मार्क आता है कई प्रोडक्ट्स में,
जैसे आप हेलमेट खरीदते हैं, गवर्नमेंट ऑल में जनरली कहा जाता है ट्रैफिक एडवाइजरी में कि आपको आईएसआई मार्क हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए। तो आईएसआई मार्क हेलमेट का मतलब है कि दैट हेलमेट हैव पास्ड ए सर्टेन टेस्ट। तो आईएसआई इज ए स्टैंडर्ड एजेंसी ऑफ इंडिया दैट असाइंस दैट टेस्ट। सिमिलरली फूड्स के कैटेगरी में FSSAI है। okay, so there are certain agencies that also provide additional quality marks, और वो क्या करते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड्स, दे डिफाइन सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोडक्ट्स, एंड इफ द प्रोडक्ट सेटिस्फाई दोज स्टैंडर्ड्स देन दे आर गिवन दैट मार्क। लाइक ISI मार्क आपने सुना है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ISI मार्क चलता है कई प्रोडक्ट्स में, एंड कई सारे इंटरनेशनल मार्क्स भी हैं। आपने देखा होगा कई बार एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट है तो उसका लोगो अलग, एनर्जी सेविंग वाला लोगो आता है, स्टार लोगो। दीज आर सम अदर ट्रेडमार्क्स। सो ट्रेडमार्क जरूरी नहीं है कि कुछ सिंबल्स हों, दे कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ऑल्सो, जैसे JP Morgan, यू कैन सी दिस इज ऑल्सो ट्रेडमार्क। ऑरेकल सिंबल नहीं है, केवल स्पेशल तरीके से एक वर्ड लिखा गया है, दैट इज दैट। सो द ट्रेडमार्क ऑल्सो हैव सम specific patterns also। आप देखेंगे this is written GE but this GE is written in a different way। IBM, this is a trademark, 3 words हैं, but the trademark कैसे define हो रहा है, the kind of the way that the words are presented। अगर आप किसी प्रोडक्ट पर IBM सिंपली ऐसे लिखा देखते हैं, that is not IBM। let's say if you see IBM इस तरीके से किसी प्रोडक्ट पर लिखा है तो ये ट्रेडमार्क नहीं है। IBM शुड बी रिटन लाइक दैट, है ना। और आपने देखा होगा डेल इज ए प्रोडक्ट, तो अगर आप किसी प्रोडक्ट पे ऐसे लिखा देखते हैं, दिस इज नॉट ओरिजिनल डेल में क्या है, D और फिर E इस तरीके से होता है, तो टेढ़ा होता है। हाँ, है ना, D और E टेढ़ा होता है। सो जनरली क्या करते हैं, जो काउंटर फीट करने वाले होते हैं, प्रोडक्ट काउंटर फीट करने वाले, वो मिलता जुलता बनाते हैं। सो पीपल जनरली कई बार बारीकी से नहीं देखते हैं चीज़ों को। सो किसी प्रोडक्ट पर हो सकता है ऐसे लिखा हो, बट दैट इज़ नॉट ओरिजिनल डेल। ओके, समटाइम्स एडिटेड लोग भी कॉपी कर देते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो नाउ इट्स इन दिस केस द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंपनी इटसेल्फ, कि अगर कोई मिसयूज कर रहा है आपके मार्क को, तो आप मार्केट में आप ट्रैक करें उसको, और देन इफ सम यू कैन आइडेंटिफाई हु इज डूइंग दिस, एंड यू कैन ब्रिंग ही और सी, जिसको जो भी एजेंसी कर रही है या पर्सन कर रहा है, यू कैन टेक देम टू कोर्ट, एंड कोर्ट फिर अकॉर्डिंगली जो ट्रेडमार्क लॉ है उसके अकॉर्डिंग उनके अगेंस्ट एक्शन लेगा। ओके, सो ट्रेडमार्क कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे दिस इज द ट्रेडमार्क फॉर ए बोतल। सो कई बार जब प्रोडक्ट की सेफ है, दैट ऑल्सो वर्क्स एज ए ट्रेडमार्क। लाइक जो कोको कोला की बोतल है, उसकी एक खास शेप होती है, पेप्सी और कोको कोला की, सो दैट शेप ऑल्सो वर्क्स एज ट्रेडमार्क। दिस इज द ट्रेडमार्क, एक खास तरीके से M को लेटर को बनाया गया है। सो दैट मीन्स आई जस्ट वांट टू से कि सिंपली लेटर्स नहीं होते हैं, ट्रेडमार्क आर नॉट ओनली लेटर्स, दे कैन बी ए पैटर्न ऑल्सो, ए वे ऑफ राइटिंग लेटर्स ऑल्सो, काइंड ऑफ इट इज ए काइंड ऑफ ट्रेडमार्क। वॉक्सवैगन आप देख सकते हैं, 2 लेटर्स हैं W and V, बट दे आर रिप्रेजेंटेड एंड अरेंज्ड इन ए डिफरेंट वे। सो ट्रेडमार्क में कई तरीके के होते हैं। दिस इज ए ट्रेडमार्क फॉर ए मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी, अपने यहाँ तो नहीं है, ये फॉरेन कंपनी, ऑरेंज, सिंपली ऑरेंज लिखा हुआ है और ये कलर होता है इसमें। सो अगर आप एक मार्क देखते हैं जिसमें ये ऑरेंज लिखा हो, TM लिखा हो, कलर अलग हो, तो वो ओरिजिनल ट्रेडमार्क नहीं हो। दिस इज द स्पेसिफिक ट्रेडमार्क, सेम ये ऑरेंज कलर भी होना चाहिए उसमें, दैट इज द ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क में एक खास एस्थेटिक पार्ट होता है, ध्यान रखना है आपको। ट्रेडमार्क कंटेन्स ए स्पेसिफिक एस्थेटिक पार्ट ऑल्सो, and they need to be registered। now trademark, जैसे मैंने कहा कि you have to register your trademark, and trademark is generally if you get a trademark that will be valid for 10 years, और फिर बाद में आपको periodically you have to renew it, by paying a certain fee। then there is another intellectual property that is called industrial design। so industrial design is actually a property that is related to the ornamental and aesthetic part of a product। so aesthetic मतलब उस प्रोडक्ट को की खास शेप कैसी है, उसको सजाया कैसे गया है। ओके, सो पार्ट और what is the kind of packaging, that is called industrial design। so let me show you if there is any diagram of that।
नो आई डोंट हैव एनी डायग्राम ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन. सो इंडस्ट्रियल डिजाइन मीन्स आपने देखा होगा कि मैनी टाइम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स कम्स विथ इन ए डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग. सो आपने अगर देखा हो किटकैट टॉफ़ी, उसकी एक पैकेजिंग खास तरीके की है. दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन फॉर दैट प्रोडक्ट. सो आप उसके डिज़ाइन को कॉपी नहीं कर सकते. और द पैकेजिंग दैट कम्स विथ एक और चॉकलेट है ना, कौन सी कंपनी, कैडबरी. कैडबरी का अपना ट्रेडमार्क भी है, लेकिन आपने देखा कैडबरी की चॉकलेट एक खास तरीके के पैकेजिंग में आती है. एक खास कलर है पैकेट का, उसका पर्पल टाइप का कलर. सो दैट इज द इंडस्ट्रियल डिजाइन. सिमिलरली इंडस्ट्रियल डिजाइन इज एप्लीकेबल फॉर लाइक द ज्वेलरी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का. सो ज्वेलरी में मैनी कंपनीज क्रिएट्स देयर ओन डिजाइन. सो कोई एक ज्वेलरी है दैट विल हैविंग सर्टेन डिजाइन. So that design is also industrial design actually, and it is copyrighted. Copyrighted means that is an intellectual property. So if suppose Tanishq comes up with a design for a, let's say let's say ring है, that they come up with a design for a ring. So nobody that design, whatever design they have come up is a kind of intellectual property, क्योंकि वो उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया. दैट डिज़ाइन कैन नॉट बी कॉपीड. सो मैनी टाइम जो प्रोडक्ट में जो पैकेजिंग है, दैट मीन्स एस्थेटिक पार्ट है उसका, या आपके ऑर्नामेंट्स हैं, खास करके ज्वेलरीज हैं, उनका एक खास बनाने का तरीका होता है. दे हैव देयर ओन डिज़ाइन, जिसकी वजह से दे लुक्स ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. सो दैट इज ऑल्सो दैट कम्स अंडर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. सो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ शेप, how the product is shaped, what is the kind of configuration of the product, what are the patterns that are there on the product, what is the color combination that has been used to define the product. So whatever aesthetic aspect is there, aspect जो है product का, जो सजावट वाला जो aspect है, that comes under the category of industrial design. ओके, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जनरली आप देखेंगे हैंडीक्राफ्ट्स में यूज़ होता है, खास करके फैशन इंडस्ट्री में यूज़ होता है. आपने देखो क्लॉथ्स को, जीन्स को, स्वेटर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स हैं, उनको अलग अलग तरीके से डिज़ाइन से बनाया जाता. तो सो दो डिज़ाइंस आर ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं. दो डिज़ाइंस आर ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. क्लॉथ के ऊपर जो पैटर्न है, दे ऑल्सो कम्स अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. So no, if some company comes up with a very good pattern that looks attractive, so that can be registered as intellectual property. And वो किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड होगा? इंडस्ट्रियल डिजाइन के कैटेगरी में. सो ज्वेलरी, वॉचेस, लग्जरी आइटम्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इवन जो बिल्डिंग्स के जो आर्किटेक्चर्स हैं, दे कैन ऑल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी. सो कोई भी प्रोडक्ट है, उसका जो ऑर्नामेंटल या एस्थेटिक पार्ट है, शेप, टॉयज़, इवन टॉयज़ किस तरीके से दिखाएंगे, कार को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इवन व्हीकल्स जो आप जो पब्लिक व्हीकल्स हैं या जो भी रियल व्हीकल्स हैं, नॉट टॉयज़ व्हीकल्स, सो दे ऑल्सो हैव देयर ओन डिज़ाइन. एक गाड़ी का डिज़ाइन दूसरा अलग है, नेक्सान का एक अपना डिज़ाइन है. सो ऑल दीज डिज़ाइंस कम्स अंडर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रॉपर्टी राइट, सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड यू कैन रजिस्टर दैम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. ओके, सो वही पैकेजिंग और ये सब. सो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का जो ड्यूरेशन है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. इसको आपको डिज़ाइन को रजिस्टर कराना होता है, एंड 10 से 25 साल तक का आपका इस पर डिज़ाइन पर राइट रहता है. देन देयर इज अनदर प्रॉपर्टी, आई थिंक अभी है, जल्दी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं. आई थिंक मुझे लगता है इसको 2 लेक्चर में ही ख़त्म करना चाहिए था. ट्रेड सीक्रेट. So trade secret actually it is a kind of formula, practice, design, instrument, whatever you have, जो कि आपके बिजनेस में दूसरे आपके कम्पिटिटिव के ऊपर एज प्रोवाइड कर सकता है, इज कॉल्ड ट्रेड सीक्रेट. सो जनरली ट्रेड सीक्रेट एक फार्मूला हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल आपने कोको कोला के बारे में सुना होगा. कोको कोला जो कोल्ड ड्रिंक है, वो दे हैव, जो कोको कोला का जो फार्मूला है बनाने का, वो प्रोडक्ट बनाया कैसे गया है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, द कंपोनेंट, द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड देयर कंपोजिशन एंड द क्वांटिटीज रेशो जो है, दैट इज केप्ट एज ए ट्रेड सीक्रेट. ओके, सो कई कंपनी जो किसी एक फार्मूला लेकर के आती हैं, या कोई एक मेथड यूज करती है अपने बिजनेस में, या कोई टेक्नोलॉजी ट्रिक वट दे कैन केप्ट एज ए ट्रेड सीक्रेट. ठीक है, वो उसे सीक्रेट रखती हैं क्योंकि वो उनको बिजनेस में एक अपने कंपटीटर पर एक बेनिफिट या एज देता है. ओके,
So they are called trade secret. Okay. सो कोको कोला का जो कोल्ड ड्रिंक है उसका फार्मूला क्या है, वो कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट किस रेशो में मिले हुए हैं, दैट इज बीइंग केप्ट बाय द कोको कोला एज ए ट्रेड सीक्रेट. ओके. सो ट्रेड सीक्रेट में हालांकि इट कम्स अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट इसके केस में ट्रेड सीक्रेट्स आर नॉट रजिस्टर्ड. एंड वो ट्रेड सीक्रेट को आपको प्रॉपर्टी के तौर पर तभी तक ही माना जाता है जब तक वो ओपन नहीं हुए. जिस दिन आपका वो ट्रेड सीक्रेट मान लो समहाउ डिस्क्लोज्ड हो गया, then it will not become its secret now, and it will not be considered as a intellectual property. Okay. So somebody suppose stole your trade secret, आप उसे prosecute करवा सकते हैं. लेकिन अगर वो ट्रेड सीक्रेट पब्लिक डोमेन में आ गया फिर आप उसे रोक नहीं सकते कोई किसी को भी यूज करने से. सो हालांकि ट्रेड सीक्रेट को IPR के तौर पे कोई भी जो ना एजेंसी नहीं है जो इसको रजिस्ट्रेशन देती है. यू हैव टू कीप ट्रेड सीक्रेट एंड यू विल कॉल इट ट्रेड सीक्रेट. आप इसे किसी को ना बताएं. नोबडी कैन आस्क यू और नोबडी कैन फोर्स यू. जैसे कोला को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि अपना फॉर्मूला जो है ना सबको बताइए आप कैसे बनाते हैं कोल्ड ड्रिंक. देन देयर इज अनदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड ट्रेड ड्रेस. सो ट्रेड ड्रेस अगेन एक लीगल टर्म है जो कि प्रोडक्ट की विजुअल अपीयरेंस को आइडेंटिफाई करती है. सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये दो कोल्ड ड्रिंक के कलर सबको सेम है, कोल्ड ड्रिंक सेम है, बट यू कैन आइडेंटिफाई ये दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं. दिस इज कोको कोला, दिस इज पेप्सी. हाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई? ये लोगो, द वर्ड दे हैव रिटन, देन द काइंड ऑफ बॉटल्स दे आर यूजिंग, है ना. बॉटल्स के ऊपर पैकेजिंग जो है किस तरीके से की गई है. सो इट इज़ कॉल्ड अ ट्रेड ड्रेस, है ना. बिजनेस में ड्रेस मतलब आप समझते हैं ट्रेड यानी बिजनेस. तो आपने अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से ड्रेस किया है, प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आप, दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट कैन नॉट बी कॉपीड. आप इसे कॉपी नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक में अंदर कुछ भी भरा होगा और आपने कोको कोला की बोतल पे कोको कोला लिख दिया और वैसे ही बोतल ले ली और आप उसे मार्केट में लेके आ गए. सो दैट मीन्स यू आर वायलेटिंग दिस ट्रेड ड्रेस रिलेटेड लॉ एंड यू कैन बी मे बी प्रोसिक्यूटेड. Then there is one important property, geographical indication. So geographical indication जो है ना it is generally a property that is related to geography of a product or origin of the product. For example दार्जिलिंग टी आपने सबने सुना होगा. So दार्जिलिंग टी एक टी में एक खास प्रॉपर्टी है इस एरिया की वजह से. ये जो टी है दार्जिलिंग के जो जोन है एरिया वहाँ पर उगाई जाती है और इस एरिया में ये टी उगने की वजह से इसका क्लाइमेट हो सकता है या अर्थ का जो मिट्टी का जो कंपोजिशन है उसके बेस पर जो टी में जो एक स्पेसिफिक क्वालिटी आती है, दैट क्वालिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन. और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को GI टैग से रिप्रेजेंट किया जाता है. GI या तो GI सिंपली लिखा होगा या एक खास सिंबल बना होगा. जैसे ये वाला जो ना दार्जिलिंग टी के लिए है. सो दार्जिलिंग में जो भी चाय उगती है और आप दार्जिलिंग टी को प्रोक्योर करके पैकेजिंग करके आप उसके ऊपर ये सिंबल लगा सकते हैं एंड दिस सिंबल विल इंडिकेट दैट ये जो ट्री है ये दार्जिलिंग में उगाई गई है, इसका ओरिजिन दार्जिलिंग का है. और चूँकि दार्जिलिंग की जो चाय है उसमें एक खास टेस्ट है या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आई डू नॉट नो कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, बट दैट इज़ कंसिडर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन और इसकी डिमांड है दार्जिलिंग टी की. ओके. सो आप ये नहीं कि टी आपने कहीं और उगा ली और उस पर ये वाला टैग लगा दिया, दैट मीन्स यू आर डूइंग वायलेशन ऑफ द GI टैग. ओके. सो जो GI टैग होता है किसी प्रोडक्ट पर वो इंडिकेट करता है कि ये प्रोडक्ट उस एरिया से आया है. जैसे बीकानेरी भुजिया आपने देखा उसमें ये इसका मिसयूज़ होता है. कोई अमेरिकन कंपनी एक जो है ना पेप्सी, वो भी बीकानेरी भुजिया उस पर लिख करके बेचती है, जबकि बीकानेरी भुजिया का मतलब वो बीकानेर की बनी होना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट बीकानेरी. वो खुलेआम मिसयूज़ हो रहा है इंडिया में, बट पीपल डू. कई बार गवर्नमेंट्स भी ध्यान नहीं देती हैं इस पर. ओके. सो आपने बीकानेरी भुजिया एक तरीके का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है. सो अगर एक कोई भुजिया बीकानेर में बनी है तो उस पर आप बीकानेरी भुजिया लिख सकते हैं और दैट इज इंडिकेटिंग कि इस भुजिया का ओरिजिन बीकानेर है.
ओके, सो सर्टेन प्रोडक्ट्स जो है किसी एरिया में बनने की वजह से, किसी लोकेशन की जैसे से आने से उनमें खास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड दोज प्रॉपर्टीज आर इंडिकेटेड बाय जीआई टैग। सो ये जीआई टैग या तो वर्ड के फॉर्म में लिखा होगा या इट विल बी हैविंग ए सिंबल। So some of the products that are having geographical indication, जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, कांचीपुरम सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी, अल्फांसो मैंगो, सोलापुर चादर। ओके, एंड एक और आपने रिसेंटली सुना होगा कड़कनाथ मुर्गा, सुना है? एमपी के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का वो ओरिजिन है एक्चुअली उसका, लेकिन अब उसको कई स्टेट्स में भी उसको पाला जा रहा है मुर्गे को, और उसमें एक खास उसके मीट में खास प्रॉपर्टीज होती हैं, लो फैट वाला होता है वो। सो दैट इज़ वेरी कॉस्टली, सो दैट इज़ जीआई, वो जीआई प्रॉपर्टी है उसमें, दैट इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हालांकि और दैट इज़ रजिस्टर्ड जीआई टैग फॉर स्टेट मध्य प्रदेश। एंड अभी आपने एक बार और सुना होगा जो रसगुल्ला, उसमें उड़ीसा और 2 स्टेट्स के बीच में विवाद हुआ था, एंड फाइनली पश्चिम बंगाल विन दैट केस, कोर्ट में चले गए थे दोनों। उड़ीसा वाज क्लेमिंग दैट सिंस रसगुल्ला वाज यूज्ड एज ए प्रसाद इन जगन्नाथपुरी टेम्पल, वहीं पे बनता था काफ़ी समय से, वो हमारी जीआई प्रॉपर्टी है, मतलब उसको में हमें जीआई टैग मिलना चाहिए। एंड बंगाल, आप जानते ही हैं रसगुल्ला बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो बंगाल वाले भी क्लेम कर रहे थे कि नहीं रसगुल्ला हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे यहाँ का ओरिजिन है उसका। सो बाद में कोर्ट में केस हुआ, एंड देन जो केस जो जीता वो कौन जीता? बंगाल। ऐसे ही एमपी ओरिजिन। हाँ फेमस भी तो सर वो रसगुल्ला बंगाल के लिए है सर, लोग भी जनरली नहीं नहीं, हाँ तो वो तो है, पता चला कि वो हाँ ओडिशा ने भी क्लेम किया। हाँ हाँ, उड़ीसा ने क्लेम किया था, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी में बहुत सालों से प्रसाद के तौर पे वो वहाँ बनता था या उसी के आसपास कुछ, तो वो बोलते थे कि यहाँ भगवान को प्रसाद के तौर पर रसगुल्ला बहुत सालों से हमारे यहाँ चढ़ा जा रहा है, यहीं से ओरिजिन हुआ है, तो वो ओरिजिन की लड़ाई थी। ऐसे ही जो कड़कनाथ मुर्गा है ना, ये चिकन जो है इसके, ये झाबुआ में मिलता है, एमपी के झाबुआ की ये ब्रीड है एक्चुअली, वहीं पे ओरिजिनेट हुई है एमपी से, झाबुआ से। तो बाद में क्या हुआ था, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वो मतलब गरीब आदिवासी लोग ज़्यादा हैं छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ लोगों को एम्पावर करने के लिए कुछ वहाँ से ब्रीड ले जा करके उनको दी गई, और वहाँ पे लोगों को मतलब पालने के लिए दिया गया, और वहाँ भी वो फला फूला। तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ ने भी क्लेम किया कि ये हमारे यहाँ का ऑरिजिन है, उस पर जीआई टैग लेने की कोशिश की थी, तो उनमें भी कोर्ट में केस हुआ था बाद में, बट लेटर क्लैरिफाई हुआ, एमपी वन दैट केस। तो कई बार होता है ऐसे, खास करके आप बासमती राइस की देखें, जैसे कि बासमती राइस में व्हाट हैपेंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। यू नो दैट बासमती राइस हैव ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, उसकी जो अरोमा होती है, और स्पेसिफिक राइस है, लंबा पतला और अरोमेटिक राइस होता है। सो व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ बासमती, सम अमेरिकन कंपनीज, कुछ अमेरिकन कंपनीज होती, उन्होंने इस बासमती राइस के जो जीन है उसको स्टडी किया, एंड देन दे क्रिएटेड द बासमती राइस विद काइंड ऑफ राइस विथ द सेम काइंड ऑफ अरोमा इन देयर लेबोरेटरी, और फिर उन्होंने अमेरिका में ही उन्होंने और अलग अलग जगह से उगा करके और मार्केट में बासमती राइस के नाम से बेचना शुरू किया। ओके, सो बाद में फिर इंडियन गवर्नमेंट हैव टू गो टू द कोर्ट, एंड देन आई डोंट नो अब उसको केस का क्या हुआ। सो हाउएवर जो जीआई है बासमती राइस का, वो इंडिया और पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि बासमती राइस जो है इंडिया और पाकिस्तान की मिट्टी में ही उगता है, जो मतलब जो इंडियन जो आप कह सकते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इस एरिया का ही एक्चुअली ये जो कह सकते हो आप नेचुरल जो क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन ऑफ द राइस, बासमती राइस इज दिस प्लेस एक्चुअली, और यहीं की मिट्टी में वो उगता है। सो ओरिजिन प्लेस जो है ना यही है। सो बाद में आई थिंक वो कंपनी को वो कोर्ट केस हारे थे, बाद में उनको ये कहा गया कि आप उसे बासमती राइस के नाम पर नहीं बेच सकते, और यू कैन नॉट मॉडिफाई और यू कैन नॉट कॉपी द जीन्स ऑफ दैट राइस। बट स्टिल ये जो लॉज हैं एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, दे हैव बीन टेकिंग इन, जो उनको जो अटेंशन मिलना शुरू हुआ है रिसेंटली 100 ईयर्स में ही शुरू हुआ है। सो दैट्स वाई अभी भी इनका मिसयूज़ बहुत होता है। ओके, मैंने कहीं पढ़ा था अभी भी स्टिल सम कंपनीज ऑफ अमेरिका आर यूजिंग
क्लेमिंग जो उन्होंने आर्टिफिशियली मॉडिफाई करके, जीन मॉडिफाई करके कहीं और उगा करके राइस को बासमती राइस नाम से सेल करते हैं, बट दैट इज़ नॉट द रियल बासमती राइस। सो बासमती राइस एक्चुअली क्या है कि देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स, उसमें एक खास क्वालिटी आती है उस एरिया और रीजन की वजह से, तो समटाइम्स पीपल ट्राई टू मिस यूज़ दैट, तो इसलिए लोग जीआई टैग हासिल करने की भी कोशिश करते हैं उस पर। सो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए, काउंटर फीटिंग करने के लिए, जैसे अमेरिकन जो कंपनीज थी कुछ राइस को लेबोरेटरी में या जीन मॉडिफाई कर लिया या जीन कॉपी करके पेस्ट कर दिया उसमें, और फिर उस क्लेम करने लगे जैसे बासमती राइस है, आप लोगों को भी फूल कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो फूलिंग द पीपल एज वेल। सो इस तरह के प्रैक्टिस को रोकने के लिए जीआई टैग हैज़ बीन क्रिएटेड। ओके, सो जीआई भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एंड इट इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स, एंड बाद में आपको इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। So however GI tag is there, but again I will reiterate that patent laws are also there, लेकिन फिर भी इन लॉज का मिसयूज होता है, पेटेंट्स में वायलेशन होता है। कई बार क्या होता है, कंपनियां पेटेंट्स लॉ का मिसयूज भी करती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द वैक्सीन रिलेटेड इशूज। कई कंपनियां पेटेंट्स को फ्री नहीं करना चाह रही हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो फाइजर है या और जो भी कंपनियां हैं, दे हैव पेटेंटेड दैट टेक्नोलॉजी। कई कंट्रीज़ ने कोशिश की कि आप इनको पेटेंट से फ्री करें, सो दैट अदर कंपनीज को लाइसेंस देकर के हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग करा पाएँ, और सो दैट वैक्सीन विल बी इजीली अवेलेबल टू अंडर डेवलप्ड एंड लेस डेवलप्ड पुअर कंट्रीज। बट यू नो दैट ड्यू टू दीज पेटेंट्स रिलेटेड हर्डल, लाइसेंसिंग अदर कंपनीज को नहीं दी जा सकी। कुछ ही कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेट कर रही हैं, और इसलिए वैक्सीन इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल द कंट्रीज। दैट इज़ अगेन इशू। सो पेटेंट्स लॉज समटाइम्स प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो कई बार कंट्रीज या जो कई कंट्रीज बैठी और कोशिश की लोगों ने कि पेटेंट लॉ में रिलैक्सेशन दी जाए, वैक्सीन के रिलेटेड रिलैक्सेशन दी जाए, मतलब इनको पेटेंट लॉ में कंपनीज को फोर्स किया जाए कि आप पेटेंट को रिलैक्स करिए और लोगों को लाइसेंस दीजिए, बट कई कंपनीज नहीं तैयार हुई। सो समटाइम्स ये गवर्नमेंट ट्राई करती हैं कि पेटेंट्स और इन लॉज को रिलैक्स भी किया जाए फॉर द ब्रॉड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, and many times still these patent laws are violated. Okay, so GI टैग हो गया, दो चीज़ें हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिकेशन ऑफ सोर्स बताता है एंड अपीलेशन ऑफ ओरिजिन बताता है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है। ओके, नाउ वन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, व्हाट इज़ द रेशनल बिहाइंड आईपीज। जो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन रेज किया कि जब पेटेंट से रिलेटेड इतनी बड़ी प्रॉब्लम इशू अराइज हुआ कि कंपनीज को पेटेंट दिया गया, नाउ कंपनी वाज डिनाइंग दैट वी विल नॉट गिव लाइसेंस टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस वैक्सीन्स। ओके, सो वो लाइसेंस नहीं देना चाह रहे थे, सो दैट कि वही हम बनाएंगे और हम बेचेंगे, एंड ओनली द प्रॉफिट वी विल, द होल प्रॉफिट ओनली वी विल अर्न, पूरा प्रॉफिट हम कमाएंगे। ये एक तरीके की वो सोच थी। सो समटाइम्स पीपल में से दैट नो, किसी भी कंपनी को या किसी चीज़ को पेटेंट नहीं देना चाहिए, है ना, एक जस्टिफिकेशन हो सकता है। तो देयर इज अ रेशनल बिहाइंड गिविंग पेटेंट्स एक्चुअली। व्हाट इज दैट रेशनल? लेबर जस्टिफिकेशन। लेबर जस्टिफिकेशन क्या कहता है? इफ़ यू विल नॉट यू विल नॉट अलाउ ए पर्सन टू गेट द बेनिफिट दैट द पर्सन हैव क्रिएटेड आफ्टर ए हार्ड वर्क ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, आफ्टर डूइंग ए हार्ड वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। आपने लंबे समय तक एक मेहनत की है, तब आपने कुछ डेवलप किया, यू कम अप विद ए थिंग दैट यू हैव क्रिएटेड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। let's say it is a side, let's say it may be a scientific innovation, or it is a kind of technical solution, or it can be a novel literary work, film, drama, etc. so इस सब में मेहनत लगती है and that requires skill that sometimes you have to invest a lot of time to attain or to get that skill, so that you will be able to create certain creation intellectual properties. सो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उनको क्रिएट करने में यू हैव डन ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क. सो इफ़ यू विल नॉट अलाउ देम टू एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर हार्ड वर्क, देन ए सोसाइटी विल नॉट सी एनी इनोवेशन. सो अगर आप एक किसी सोसाइटी में लोगों को जो इनोवेशन कर रहे हैं उनको कोई भी फ्रूट्स एंजॉय नहीं करने देंगे,
उनका कोई बेनिफिट नहीं लेने देंगे, देन nobody will do innovation. Yes or no? So this is the labor justification कि किसी ने मेहनत की है, स्किल जनरेट, अपने अंदर वो स्किल लेके के आए हैं, उस स्किल की वजह से ही हैव डेवलप्ड समथिंग, सो ही इज द प्रॉब्लम, ही शुड बी गिवन द राइट टू एंजॉय इट्स फ्रूट्स. ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या उसे इनफाइनाइट टाइम तक उसका फ्रूट एंजॉय करने दीजिए? आंसर इज नो. उसे आपको लिमिट करना पड़ेगा. यू हैव टू डिफाइन ए लिमिट फॉर दैट. इसीलिए लिमिट डिफाइन की गई है, सो दैट अल्टीमेटली अगर आप उसे लिमिट नहीं करेंगे देन सोसाइटी विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दैट. सो आपको उसका बेनिफिट सोसाइटी को भी दिलाना है. वाई शुड बी अलाउड सोसाइटी टू गेट बेनिफिट ऑफ हार्डवर्क ऑफ समबडी एल्स? इसके पीछे भी रीजन है कि जैसे सपोज इफ यू डेवलप ए रिसर्च और इफ यू कम अप विद ए टेक्नोलॉजी आफ्टर डूइंग योर पीएचडी, या पीएचडी के बाद यू गेट ए स्किल और कुछ आपने अच्छा काम किया, कुछ पेटेंट किया, सो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन एक टाइम बाद आपको वो बेनिफिट आपको नहीं, देश को भी मिलना चाहिए. क्यों? क्योंकि कंट्री हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड ऑन यू, है ना. योर सोसाइटी ऑल्सो हैव इन्वेस्टेड इन यू. आपने जो बचपन में स्कूलिंग की, आपने यू हैव गॉट चीपर एजुकेशन और सब्सिडाइड एजुकेशन, चाहे वो कॉलेज में हो या हो और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी सोसाइटी में आपको स्कूल्स मिले, कॉलेज मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, फैसिलिटीज़ मिली, वो भी तो सोसाइटी से आई हैं, सोसाइटी के टैक्स मनी से आई है ना. सो अल्टीमेटली यू ऑल्सो नीड टू रिटर्न गिव बैक टू द सोसाइटी. ओके, सो देयर इज एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि आपको कुछ समय तक अपने इन्वेंशंस का फ्रूट्स भी लेने दिए जाए, फिर बाद में आपका वो चीज़ सोसाइटी को मिलना भी चाहिए. सो दैट दिस इज द रेशनल बिहाइंड आईपीज. सो आईपीज में आप देखेंगे जितने भी लॉज हैं उसमें जो कॉपीराइट्स दी गए हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए दिए गए हैं. कॉपीराइट्स में लंबा है पीरियड, इंडस्ट्रियल्स के केस में थोड़ा सा पीरियड कम है, जैसे पेटेंट 20 साल के लिए दिया जाता है, उससे आगे नहीं दिया जाता, है ना. सो दैट इज द जस्टिफिकेशन बिहाइंड दैट. दूसरा एंगल आईपीज को इशू करने के पीछे पर्सनालिटी एंगल भी है, क्योंकि आईपी पर्सनल प्रॉपर्टी है और वो आपकी एक, इफ़ यू सपोज क्रिएट सर्टेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, सो यू विल गेट रेपुटेशन ऑल्सो. सो आपको, आप चूँकि चीज़ें आपने क्रिएट की हैं तो आपको उनका क्रेडिट भी मिलना चाहिए. तो देयर शुड बी सम सेट ऑफ लॉज दैट विल गिव यू दैट क्रेडिट टू यू एंड यू कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑल्सो दैट. ओके, सो देयर शुड बी ए बैलेंस, कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की है तो वो हमेशा ही आपकी रहे. कुछ टाइम तक आपकी रहेगी, यू शुड एंजॉय द बेनिफिट ऑफ दैट एंड अल्टीमेटली लेटर इट शुड बी गिवन बैक टू द सोसाइटी. ओके, क्योंकि society have invested on you and because of society you have done that also, so there need to be a balance. Okay, so this is IPR from my side. If you have any doubt or question or anything you want to say, you can say.